गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड के आदमी है, क्या करेंगे? लाइट हो ना आदिशदा. अरे हे अरुण फ्रेम में क्यों आ रहा है? पीछे ना अरुण मोबाइल लेके कलीमा पीछे भैया फिर थोड़ी चेंज होने वाला है. हमारी बटालियन पूरी बहादुरी से पीछे हट रही है. अरे बस चल ये भी ले चले. अंदर है ना. अब देखिए बहुत अच्छा हो रहा है. आतिश भाई अभी है. आतिश भाई इधर आओ ना. अरे इधर आओ. अरुण हट. तो बैठा हूँ बे. Come, few of you will come inside here. अभी बच सकते ना. ये सब शर्ली टीम का काम है. ये सब शर्ली का काम है. मैं बोल रहा हूँ she's done a great job. अच्छा. Joshua, how many more are coming? क्या सवाल है? और क्या है? जाती है अच्छी बात है. काम तो आप करते हैं. नहीं मुझे ये लिखा था किताब का कफन. उसमें एक राइटर आगे चल रहा है वो बेचारा अंग्रेजी पूरी हालत में है कि आप कुछ और काम क्यों नहीं करते. उसने कहा प्रोफेसर से क्यों नहीं कहते कि वो स्टॉक एक्सचेंज में भी काम करे. ये स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है आप क्यों नहीं कहते कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा यूनिवर्सिटी एक लंबी लिस्ट क्यों कहते कि कुछ और क्यों नहीं कुछ और करते. I think we're gonna be dying. मंगा लीजिए. देखिए कॉफी और एक दो ग्रीन टी भी. ग्रीन टी है. ग्रीन टी है 2-3.
एक हफ्ते के लिए बन जाएगा और बता दे क्या सोनू सर लुकिया सर इधर सोनू सर आइए आइए सर इधर क्या बात है यानी कोई बात नहीं है कोई बात नहीं सर आइए आइए सर थैंक यू अरे 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 सोनू सर इधर सोनू सर इधर सोनू सर लेफ्ट में मेरे कैमरे सर सोनू सर सर या सोनू सर मैम साथ में एक फोटो शंकर सर साथ में शंकर सर सोनू सर हाँ हाँ Thank you. Sir, should we go? Shirley, Shirley, जाएंगे आप? This time not Shankar, start. It is 7:45. We start walking for them. We just walk through. Yeah. We start at That's 7:45. reaching in like 4 or 5 minutes. तब तक आ जाएंगे वो. It's okay. आ जाएंगे. We slowly start walking. By the time we settle, वैसे सब हो जाएगा. And we can start going. Give me 5 minutes. Amongst the artist family over here, a room full of musicians, singers, composers, and lyricists. This was a dream which we began quite some time back, and today, the fact that we are going to announce Gungunalo and what Gungunalo is truly a proud moment for all of us. So thank you very much once again for coming today. Okay, so
I just thank a few people and then I will let the others speak. Firstly, when I got this idea a few years back, I first approached my engineering buddy, who's a tech genius, and many years back, he's made his, internet company and sold it to Yahoo, came back to India, and we wanted to start something together. And it requires a person of this caliber to have a platform that is going to be able to support this much of heavy data. So let's all have a loud round of applause to Sridhar Ranganathan, my engineering buddy, and one of the founder members of Gungunalo. And then, of course, there's one gentleman who's been there right from my first project that I've ever done, standing by me like a guiding light, like a mentor, like a teacher, like an inspiration. So I had to go to him and share this idea. And the minute this idea was shared with him, he just lapped it up and he said, I'm there with you all the way. So the second founding member of Gungunalo, none other than the one and only Javed Akhtar sir. Let's have a round of applause. So then every artist, the simplest way was I had to call everybody. Javedji called a few artists, Sridhar called, I called. And the minute my fraternity, the minute they heard the concept, instantly it was only yes, and they just jumped straight into it. So a big thank you to all the artists from the artist family. Let's say this has to be the loudest round of applause. Because without this platform can't happen. And then we found somebody who's going to take this and execute it. Because, as you know, we are all a room full of busy artists over here. So actually execute it, we had somebody in mind whom we approached, and she readily agreed. So let us thank Shirley Singh over here, who's the CEO of Gungunalo. Thank you, Shirley. So all these people who have been part of this family, and also there are many people who will be joining in, and they are not artists, but they're going to become part of this family in the next round. And they have joined in even before Gungunalo is launched. Even when we announced, they are already part of the family. So I thank all those people who have said, we'll reveal that at a later date, but thank you those people who are going to be part of the family very soon. So thank you. Yeah. The whole idea is to create one of the biggest platforms, which is, the difference is, this is a platform by the artists, for the artists. So I'd like to call upon Sridhar to just speak for a couple of minutes, and then we'll reveal the app. Oh, okay. For all those people who want to know who are the people who are part of the shareholders, the difference is they are shareholders of this company. So Javed Akhtar, Samir ji, Hariharan, Shan, Vishal, Shekhar, Arijit Singh, Anupam, Prasunji, Sunidhi, Shreya, Aruna Sairamji, Papon, Salim, Suleiman, Anandji, Milinji, Amit Trivedi, Kavita, Vijay, Irshad, Srinivas, Lalit, Shweta, Anusha Mani, Amita Bhattacharya, Ehsan, Loy, Akshay Hariharan, Harshdeep Singh, Mahalakshmi Iyer, Raju Singh, Manan, Bikram, Siddharth Mahadevan, Somil Shingarpuri, Rachel Singh, Joshua, Akriti Kakkar, and Shankar Mahadevan. So these are the people. Oh, once more I'm getting breathless. Okay, so let me call Sridhar. Just here is... Thank you, Shankar. That is a wonderful introduction of what the dream was. Now we have so many artists, and more artists are going to come, which means what? There's going to be more content, more interaction with fans, much more than you can consume in a day. So what do you need? You need a fantastic digital platform that connects instantly, makes all the features, it's very slick,
We have fantastic UI designers as well as back-end and front-end engineers working. And we'll just show you a little bit about what they have done so far. Take a look. Welcome the one and only Javed Akhtar sir. Good evening, everybody. To be honest, I'm rather overwhelmed by seeing so much of talent under one roof. Wonderful, and thank you very much, all of you who have come here. Time keeps flowing. Days become weeks, weeks become months, months become years, years become decades. But there are certain days in the world which are more important than the whole decade. Now, there are few examples. Like, it was 8th November 1902, when for the first time in this country a song was recorded. Sung by a 14-year-old girl. Her name was Sushi Mukhi in Calcutta. Then there was the first star singer. That was Gauhar Jaan. In her life, she has recorded more than 600 songs from 1902 to 1920 in more than 10 languages. Then Alamara, 14th March 1931, the first talkie was released. And fasten your seat belts. It had 50 songs. 50 songs. And I'm not surprised because, you see, cinema has inherited the structure from a traditional theatre, whether it is Nautanki or it is Urdu Parsi theatre or Ram Leela or Krishna Leela or plays which are almost 3,000 years old like Mirchakatikam, Shakuntalam. We have always narrated our stories, epics with songs. India is the only country in the world that has two classical traditions, hundreds of years old, Hindustani and Carnatic. We have folk songs in every language and different kind of folk song. India can very well be called a country of music and songs. So that was a very important day. And I suppose after that, the important day which came in our lives was 22nd of May, 2012, when there was a major amendment in copyright. And for the first time, the composers, the writers, the singers got their share by the law. Maybe it took us 5 years to see to it that these laws are implemented. And it was 2007 when IPRS, which is the official government-recognized body for collecting royalties, was taken over, or at least we had an equal share in power in IPRS, the writers, composers. When we took it over, it was earning 42 crores per year in 2017. After 6 years, in 2024, it has crossed 730 crores. So in a way, we are doing well. So why did we need Gungunalo? Because I think, again, the milestone day, which will be remembered in the history, is today, 5th of May. When, you see, there are two kinds of musicians, writers, one who work for film industry, one who are in classical, semi-classical, non-film music. Both of them had one problem. You see, working in film industry is a commission job. Somebody gives us a situation, and we have to compose a song, write a song accordingly. And the final judge is the director of the film, the producer of the film, and rightly so, because they are making the film. We are commissioned to do that work.
we don't have to be honest, have the final say. On the other hand, we have great classical talent. The lady is sitting in front of us, who doesn't know her? But, I mean, the marketing department doesn't let this talent or this caliber or this art reach the common man. I mean, there are elites, there are more sophisticated people with developed taste, and they go out of the way to share this great treasure of art or music. But it doesn't reach so many people. Now, here we needed complete freedom. I am not saying that that's bad. I mean, I write film songs, I write poetry, whatever I feel like. I decide the meter, I decide the topic, I decide the length of the poem or whatever. But when I'm working for a commission job, obviously I have to listen to the people who are paying me or who have signed me. Nothing wrong with that at all. And one should not feel that he is exploited. I mean, it's your choice that you are doing it. And fine. But here you have more freedom. Now, we, for the first time, have made provided a stage, provided an opportunity to the composers, writers, singers to do what they feel like doing. Write, compose, sing the way they want to do. They don't have to be answerable to anybody. They don't need anybody's approval. Even within us, within Gungunalu, we have no committee which will pass or approve or disapprove any composition or any writing. Every artist, every member of this society is totally free to give at least four compositions every year, whatever you feel like, whatever you prefer to put in public domain. This kind of freedom on this scale is a major happening. Because any name worth its salt is the member of this group, is this shareholder of this company. People will come. And for the first time, even that art, which is much superior, great art, but has not reached the common man. It doesn't reach because there is a marketing department which perhaps has their own reservations or preferences or their own expediency. It's not my business to talk about them, but it doesn't reach common people. This is the time when on this popular platform, we will have total freedom. All kind of music will reach to all kind of people. It's a major happening. We don't realize it today, but after 20 years, after 25 years, May the 5th will be one of the biggest milestones in the history of Indian music. That's our promise. So thank you very much for being here. And believe me, you are sharing a historical moment. And after many years, you will tell your grandchildren, I was there when it happened. Thank you. From the media, anybody wants to discuss anything, any ideas, any suggestions, please feel free to do so. So, can I invite... And open questions to the media. Himanshu? Yes, yes. लोग तो आपस में मिलते ही रहते हैं और हम एक दूसरे से बातें करने लगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. मैं चाहूँगा कि let it be a Q&A between the audience and us. Q&A का मेरा experience ये है that the first two questions come with great hesitation. And after that, everybody has two questions. So, who will bell the first two cats? That is to
decided. Huh? Mike, Mike. जावेद साहब नमस्कार. I think I have finished my quota. मैं request करूँगा honestly. अरुणा जी आप शुरू कीजिए कि अरे आपको आपने जब तो पहली टेक बार- ओवर ही कर लिया. आपने सजेशन दिया हमने मान लिया. बस खत्म. प्रसून जी आप बोलिए. She is the only lady in the group. A very good evening to everyone here, and such a privilege and very special moment to be here with all these amazing artists and creative people. I would like to share with you in very short the thoughts that are running through my mind. Although I am trained with a very senior guru and come from a classical background, and all my life I have rendered classical music, one part of me has always loved every other form of music that comes my way, be it folk, be it film, be it Brazilian music, or be it any other music, any country I go to. I like to collect that music and listen to that music. And sometimes when I listen to these songs, particularly folk songs, particularly when any of these artists sing amazing songs, I tell myself, oh, is there something that I can do in this popular medium? Is there something that can include me in that format, in that forum? Or am I boxed into a kind of a field and there are no windows or doors from which I can come out of that and also be a part of this, not to be not a part of what I am in, but be a part of everything else? I've always had this duvidha and wondered, how am I going to navigate all these things? Because time is always at a premium, you're constantly traveling, juggling, and so on. And there comes Gungunalo with all these amazing creative people and says, here is a platform. You can be a part of this. You can talk to musically or otherwise, converse with all these other artists and create something that makes you happy and will stand the test of time, and time will tell how good or not so good it is, but you'll have the satisfaction of putting it out there. And so I jumped at it. It's truly a very special moment. People who give their right arm to have the kind of prowess you have and the privilege you have. And Gungunalo, there are so many people who are deprived of your magic. It has not reached them. And Gungunalo is the bridge that will take this, because, I mean, they deserve, they want and they deserve to reach to your music. And I think that will happen. Sonuji, my friend and the shareholder of this company, I'll request you to say something. मतलब कमाल की बात है कि the only name left out was mine. I am the chosen one, truly. Heartiest congratulations to all of us for this special day of our lives. A lot of people's hard work and dedication has made us reach this day and experience this moment. As far as, in very short, I'd like to say that from the time I arrived in Mumbai in '91 to become a singer, my first friend that I made was Raju Singh, who's sitting over there on the other end. So we both are taking care of this row. He's sitting over there taking care. I'm in charge here. So we started. I learned a lot from him because he was back then also a senior musician and a composer, and I learned a lot of things from him. At the same time, he was very kind enough to work without asking me for any money. We started working on some songs. And the only thing that we had in our minds back then also was ऐसा कुछ करते हैं जो कोई नहीं करता. हम तभी सोचते थे कि ऐसा we would never work कि ऐसा कुछ कर लेते हैं. We made all odd songs, weird songs, and today we realize that those songs that we made are now making sense
But back then, they were just two crazy children, musically enthusiastic, trying to do something different. And I guess people will not have to wait for that long because of Gungunalo now, because I can really envision me working with so many different people whom I have never been able to work with. I know all of them, I know Kaushiki, but I'd like to do something with Aruna ji, with whoever nice, whoever wants me. And so many composers will have access to do whatever they want to do. The lyrics writer can get more creative because they're no longer limited to a movie or a theme or a story or an emotion. So as Javed Saab rightly said, we are really, really witnessing a very momentous moment, and this will be remembered in the future as one of the most important days of the history of music. अनाउंस किया कि आज वो चैरिटी करेगी तो बड़ी लंबी लाइन लग गई। मजनू को तो बहाना चाहिए था उस तक पहुंचने का, तो उसने भी वो क्यों ज्वाइन कर ली। अब सबको वो खुद दे रही थी, वो प्याला रखते थे उसको दे देती थी, तो अचानक धीरे धीरे करके मजनू भी वहाँ पहुँचा, तो उसने मजनू के प्याले को लात मार दी, तो मजनू खुशी से नाचने लगा। तो लोगों ने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुम खुश क्यों हो इस बात पे? कहला खुश मैं इस बात पे हूँ कि मुझे लैला ने बाकियों की तरह ट्रीट नहीं किया। सर मैं प्रसून जी से कुछ कहना चाहूँगा। First of all, I think a real congratulations to all of us. So big round of applause for all of us. And the ones who brought this, Shankar, Mahadevan, Sridhar and Javed Saab, I mean, आप लोगों का सारी इंडस्ट्री को बार-बार शुक्रगुजार होना पड़ेगा. I feel that is how it is. दुष्यंत कुमार जी थे, उनका एक शेर था, उसमें उन्होंने कहीं लास्ट में कहा था कि वो बोलता बहुत है मगर बेजुबान है. तो अब वो there is the fact that we all have mics, we all have pens, but often I meet friends, composers and writers all, and often I hear that पता है ये पहले क्या था, पता है ये शुरुआत में कैसे क्या लिखा था मैंने, ये सुनिए ज़रा. तो कहीं एक मलाल रह जाता है कि जो मैं कहना चाहता था वो कहने नहीं दिया गया मुझसे, कि जो मेरे अंदर पनप रहा था, और what I wanted to say, what I originally wanted to say, probably that I could not say. Somewhere I have seen in an artist. So that excuse is over. एक ऐसे इमारत में आप उड़ रहे थे कि आपको लगता था बार बार पंख टकराते हैं, काश आसमान होता. तो शायद वो आसमान भी वापस, that the commission art we used to talk about, yes, there's great work has been done in commission art, but I think we are probably going to commission it to ourselves, which is going to be a new reality. And I feel that the fact that anywhere with Javed साहब तो जाते ही हैं, मैं भी जब भी जाता हूँ कोई पूछता है कुछ सुनाइए, तो often वो गीत आप सुनाते हैं जो शायद इतने मकबूल नहीं हुए, इतने पॉपुलर नहीं हुए, इतने लोगों तक नहीं पहुँचे. आपको लगता है मेरा ये वो बच्चा है जिसको सब कुछ नहीं मिला, तो आप कहीं से निकाल के उसको सुनाते हैं. So this kind of syndrome will probably, and in the era where everybody seems to be becoming a broadcaster, there are more storytellers than listeners today. There are more music creators than music listeners today. In that era, I think there is something which we should also not, because feel that कि आपको माइक दिया गया या आपको कंपोजर बनाया गया, राइटर बनाया गया, ये गारंटी नहीं है कि आपको सच में आवाज़ मिली है. So I think this will be a beginning of a voice for the artist who supposedly should be having a voice, I think. और ये पहली बार होगा ऐसा कि मेरा जवाब प्रसून जी ने पहले दिया, मेरा सवाल ये था इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. ये सवाल बाद में आ रहा, जवाब पहले. मैं आपकी चीज़ें समझ सकता हूँ. एज ए मीडिया पर्सन हमारी जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग आपके साथ हैं. आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया. हम बिगेस्ट एजेंसी टू फ्लैश आपकी बातें, आपके इंटरव्यू. हम भी कुछ गाना बजाते हैं तो हमारे को कॉपीराइट स्ट्राइक आता है. आई होप गुनगुनालो के साथ हमारा ज़िंदगी भर ANI का टाई अप रहेगा. आपको जो बोलना है, जैसे बोलना है वैसे पहुंचाना हमारा काम.
ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा है। प्रसून जी ने जो सवाल का जवाब दिया, उसका सवाल मैं बाद में पूछ रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। हेलो, हेलो, माई सेल्फ अभिषेक, आई एम फ्रॉम न्यूज़ हब। मेरा आप सभी से मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। सभी लेजेंड्स एक साथ आए यहाँ पे, लाइक फ्रॉम सिंगर, कंपोजर एंड म्यूजिशियन। मेरा ये सवाल था कि इसमें जो यंग जनरेशन है, जो बर्डिंग आर्टिस्ट है, वो आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, पहले तो आप ये बताइए कि ये सवाल आप किससे कर रहे हैं, वरना हम लोग में झगड़े हो जाएंगे। तो दूसरे ये कि मैं समझता हूँ कि ये जवाब शंकर साहब देंगे। शंकर सर, यार आप दे सकते हैं सर। हाँ। See, गुनगुनालो में we're going to be working in phases. तो ये जो पहला फेज है, ये आर्टिस्ट शेयर होल्डर्स, we're going to be creating the content now. और हमारे बीच ही इतने कॉम्बिनेशंस है कि where is it that you're going to find, which platform you'll find, for example, Hari ji collaborating with maybe a Kaushiki or an Anusha Mani, or Sonu ji collaborating with Aruna Sairam, or a platform which is wholesome और depth है, aesthetics है, उसमें poetry है, अच्छी melodies है, तो पहले तो हम लोग उसमें जो content है वो डालेंगे. Then based on our Gungunalo family, we will decide on recommendation of our family, we will get in artists from outside, which will be maybe 100, 200, 500, 1,000, it'll come. But they will all pass a test. It can't just come and be part of Gungunalo. It'll be under the recommendation of at least one of us from this. So that's how we're going to increase the number of artists, number of content, and make this one of the biggest platforms. Multiple languages, multiple genres. You name the genre and you'll have it here in this platform. May I add something, Shankar Sahab? That perhaps everybody who will be a part of one song or the other may not be the member of Gungunalo. Tomorrow, Ehsan Sahab decides to do a song, and he finds a young man or young girl who are very good singer, and obviously they are not the members, but he has the right to use this person. Or if you find some, Prasunji finds some very talented young composer, he has all the right to give his lyrics to him and make it, and he'll put it on the site, but the person who has composed it may not be the member, and he'll look after that person's interest. So that way, every member will be able to find talent and bring it in. There is no restriction on that. A new lyricist, a new singer, a new music director. If a member wants to bring him in the work or her in, the member is allowed. So that is how they can come. If they want to become a member, they want to be a shareholder, no problem at all. Months. Samir ji, Hari. Yeah, the registration fee is to make sure that we don't get riffraff. That's the reason it is there. Yeah. Hello. Good evening, everybody. It's a great day. It's a historic day. Doing creative music has always been my, I would say, life. Singing all kinds of genres of music, be it film, be it ghazals, be it bhajans, like a lot of us here, be it fusion. But what sets Gungunalo apart is whatever we do for this company is for us. And we have
I've always had creative, what do you call it? People gave me that, or I used to take creative freedom, I would say. The artists, the curators, they own the company. It is theirs, is their temple. Hence, the creation will be of a very high level. At the same time, there is a lot of responsibility on us. To all our experiences of the writers, of the singers, of the composers come into play. So I'm really expecting amazing music to be produced and put in the market by Gungunalo. All the very best, and we are here to stay. Thank you. Music director या singer, I want everyone to गुनगुनाओ in an album at least once in 3 months, जिसमें आपके creative efforts भी हम सुन सकते हैं और newcomers को भी हम सुन पाएंगे. ऐसा हो जाएगा सर. Thank you, ठीक है, कर लेंगे. Can we hear Samir ji, please? Samir ji. I must tell you one thing, Jyoti ji and we are very old friends, and thankfully both of us have sense of humor. So there was this kind of a press conference. So he asked me one question. Then he asked me the second question. Then I said, could anybody else ask his third question? गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी. मेरे ख्याल से जावेद साहब ने और आप तमाम लोगों ने सारी बातें कह दी हैं. एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है प्रसून, आपने दुष्यंत कुमार का एक शेर सुनाया, तो मेरे ख्याल से हम सबका जो ड्रीम है वो इस शेर में है कि पीर पर्वत हो चुकी है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए. तो उस बदलाव के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है. अक्सर बहुत सारी ऐसी कविताएं, बहुत सारी ऐसी नज़में होती हैं जो हम फिल्मों में नहीं दे पाते. कई बार ऐसा हुआ कि हमको किताबों में वो देनी पड़ी कि अब फिल्म में तो वो सिचुएशन आएगी नहीं, जब जो कुछ हम तन्हाइयों में लिखते हैं, अकेलेपन में लिखते हैं, किताबें लिखनी पड़ी उनके लिए. और अक्सर जो नए बच्चे आते हैं वो हमसे हमेशा ये पूछते हैं कि कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें और हम अपना काम दे सकें. तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर प्लेटफॉर्म उनके लिए कोई नहीं होगा. जावेद साहब और शंकर ने ये सपना देखा और हम तमाम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं. और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि किसी और प्लेटफॉर्म पे ख़ास तौर से क्रिएटिव फर्टिलिटी के लिए कहीं मिलेगी. मगर एक चीज़ से थोड़ी सी शिकायत ज़रूर है कि जिस तरह से इस काम में लोगों को आगे आके काम करना चाहिए और अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए, वैसा लोग दे नहीं रहे हैं. उन लोगों से बार बार कहना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप प्लीज़ गाने दीजिए, प्लीज़ गाने दीजिए. ये आपका प्लेटफॉर्म है, किसी और को कहने की ज़रूरत पड़े ऐसा होना नहीं चाहिए. तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट जितने लोग हैं बेस्ट काम जो करके देना चाहते हैं इसमें दे दें, क्योंकि इसी से हमारा आने वाला फ्यूचर जो है सिक्योर्ड होने वाला है. थैंक यू वेरी मच. समीर साहब, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो भी रहा है क्या, इसलिए शायद नहीं दे रहे हैं. वही Ehsan, like to speak. Hi everybody. Just the one word that comes to mind is the most beautiful part about creating music, which is collaboration. And we've been doing that now for how many years? You know, the three of us with 30 years. 30 years now, actually, collaborating with everybody. I think we've collaborated with everybody who's sitting here. So it's just fun. The possibilities are endless. And I was just thinking about it. I could play blues and have Javed Saab just talking over it. Or I could play like country western and have something else on top of it. So the possibilities are endless, and it's going to be like one huge kitchen
where everyone's going to just bring the ingredients in and cook out this lovely food. And that's it. And the thing is that I know that in the future, there are a lot more plans about publishing the music and doing proper publishing the way, you know, it is done, where you send catalogs abroad and maybe people in America will pick up your music and use it for something, or use it for sync, or there's a lot of possibilities. So that's the only thing. It's very exciting, and it's just superb that this is happening at last. And I'm going to thank these gentlemen here for creating this whole idea. Thanks. Salim Gamliel. It's a great opportunity for art to finally shine. Music and poetry is art form, and somewhere that, because we're so used to making a song to a brief or to a situation or to a, this moment where, you know, you're thinking, imagining what you're feeling, which is the true form of expression, is something that every artist should experience. We've always, you know, in our country, music has been, film music has always been the, you know, the main hero. And of course, the last few years have been amazing that independent music has risen. But still we tend to go into a sort of a web where we are making music or making a song based on a certain situation or a, you know, or something that we are creating a brief for ourselves. There's, like Ehsan said, that, you know, I can just play blues and Javed Saab have spoken word on it. And these sort of creative things are going to be so inspirational, not just for the, I hate the word industry, I like to use the word community. Our community is going to inspire so many more artists who will be able to think freely and express music as an art form and not just as something that they need to do. So it's truly a historic day, and there's so much that my mind is thinking and my heart is feeling, and yeah, looking forward to the next few years. And as you can see, Shankar Mahadevan's wearing dark glasses because the future is so bright. He's not wearing dark glasses. Ajab, I have been asking him to do a blues album for the last only 25 years. तो अभी finally बनाएगा एहसान. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सोनू भाई ने बोला था कि हमने कितने टाइम पहले हम लोग सब एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और सब, यस, एंड वी यूज्ड टू जस्ट बोस्ट टू आवरसेल्व्स कि वी आर अहेड ऑफ टाइम्स, यू नो. तो वो सब आइडियाज, एंड जैसे आपने बोला कि आपने मेरे से बहुत कुछ सीखा है, तो चुपचाप मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज आई नो सो मेनी सॉन्ग्स you have played, right? So I see we all have there are sides in us. I call all of us as artist musicians, you know, because हम में सब कुछ है, लेकिन singing का, composing, writing, I think हम सब कभी-कभी मैं जावेद साहब से गाना सुन रहा हूँ तो ऐसे लगता है इनकी आवाज़ में ये कुछ अलग लग रहा है, you know. So I think the collaboration is the difference, what we can all create different, remove the different sides of us and actually create some experiment, you know, and I'm really looking forward, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं ऐसा कुछ करेगा, ऐसा कुछ करेगा, I think हमें जो freedom कभी थी नहीं, हम भी experience कर रहे हैं अभी नहीं. So I think we'll all have to get used to it. I think this, like you said, the first phase is between all of us we start doing all the songs, and जितना delay मेरे तरफ से गाने देने में हुआ, I think आज से नहीं होगा. Thank you. Let's hear Papan. Yeah, basically, I think what Prashant ji said, yeah, I still can't believe this is happening. So maybe इसीलिए हम लोग समीर जी के गाना दे नहीं पा रहे. Actually, everyone's doing their own independent. Salim has done a great job with Bhumi and his own channel. So सब अपने गाने तो कर रहे हैं. But I think this is almost unreal. I don't think this has happened anywhere in the world. I mean, just unbelievable. And मुझे लगता है इसमें एक और जो force होगा कि हम सब अपने अपने, मेरा भी YouTube channel है, please subscribe. But I'm saying this is one platform where I release a song, everyone's going to push it. He releases a song, everyone's going to push it. That doesn't happen anywhere else. I think this is really. And also the difference is you are owner of the platform. Remember that. Sorry?
You're the owner of the platform. That तो That is the obviously, difference. this is going to be a big force. I think, I hope ये जैसे हम सोच रहे हैं वैसे हो जाए. It'll be amazing. आप याद है तो एक बात, very important personality in the history of popular music. She sang in 10 languages, in different languages, even French and English. ये एक अजीब औरत थी. उस वक्त क्या था, ये राजा महाराजा नवाब लोग होते थे जिनके यहाँ जाके आपको गाना होता था. इनकी ईगो ऐसी थी कि सिंगर को खड़े होके गाना होता. Even the musician with the tabla were not allowed to sit down. So he would stand and play tabla, stand and play sarangi, or sitar, whatever. They were not allowed to sit. Gauhar Jan was the first singer who said, if I'll come to your darbar, my musicians will sit and I will sit. Otherwise I will not come. पहली औरत है जिसने कहा कि मैं बैठ के गाऊंगी, मेरे सिंगर बैठ के बजाएंगे. हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम बैठ के गाएंगे और बैठ के बजाएंगे. और एक बात कहनी भूल गया मैं कि हर बार मुझे लगता है कि जावेद साहब कुछ हम लोगों के लिए मसीहा बन के आते हैं. जब हम तकलीफ में आते हैं, चाहे कॉपीराइट का जंग जो लड़ना था या जो लड़ाई अभी हम कहीं बीच में फंस गए कि अब आगे कैसे जाएं, तो जावेद साहब ने फिर हमको आगे निकाल देने का रास्ता निकाला. तो थैंक यू वेरी मच जावेद साहब. आप नहीं होते तो शायद इस फ्रेटर्निटी को बहुत कुछ अधूरा छोड़ जाना पड़ता. मगर ऐसा ना कहिए कि मैंने आपको निकाल देने का रास्ता निकाला. ये बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट. I want to also add maybe to some more important things about Gungunano. That Gungunano is not is firstly the only streaming platform in the world which is by the artist. There's no other streaming platform, which is a very big thing. There are lots of communities, lots of societies in the whole world, but an artist society, artists, writers, composers that have started a streaming platform is something that the world has never done. Also, it's not just a streaming platform, as you saw in this thing, that this is the only platform that has all kinds of social media behind the scenes. It can also allow ticket booking for artists and concerts, and a lot of things that happen in the studio, podcasts, spoken word, so many different aspects. Behind the scenes. Behind the scenes. The AV said everything, but I'm just reiterating what I know from my knowledge, that so much that is created by the artist community as a streaming platform and a social media platform. There's nothing like that in the whole world. That makes a big difference. शंकर सर, मेरा सवाल आपसे है. Just one thing to add here, that अभी से हम लोग we've started talking about hits and money and everything. It's very good that we do. But somewhere we need to also caution ourselves that this is, we're talking about happy artists here. We're talking about self-expression. We're talking about the fact we wanted to do this and we didn't do this. Let's not that somebody else out there tells us that देखिए आपको पिंजरे की बहुत आदत थी या ज़रूरत भी थी. क्योंकि देखिए आप पिंजरे से बाहर बहुत खुश नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. So the question is that are we going to judge ourselves on every day, Javed Saab, that this is how we measure that the way we have been used to be measured and we talked about marketing people and people who came in between. They measured us success and they said नहीं इस तरह का नहीं चलता है. आपको इस तरह का करना चाहिए क्योंकि हमको देखिए आपने पहली बार किया था हुआ कुछ. Now here I think that somewhere the measuring scale has to change for ourselves. I mean, I'm just cautioning ourselves when we are venturing on this journey that the yardstick is only going to be hits or only going to be the fact that, or there is a happy Hariharan, more effervescent Hariharan is the yardstick. I couldn't agree more with Prasunji, but let me add one thing. See, nobody denies the importance of marketing. Product and marketing, both of them are perhaps equally important. But at the same time, let not the tail wag the dog. That is wrong. You create freely and the marketing department should find the market for it. Don't tell us what is in the market. Market mein ye chalta hai isliye banao. If that will happen, nothing new will happen.
तो ये तो हो ही नहीं सकता। और जहाँ पिंजरे की बात है तो आपको मैं भी, सबने एक एक शेर सुनाया है तो मैं भी, काश ये शेर मैंने लिखा होता, इतना अच्छा है। आई एनवी द पोएट हु हैड रिटन दिस लाइन। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। आज परिंदा बाहर आ गया पिंजरे से। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। हेलो एवरीवन, दिस साइड समक्ष नामदेव। सर मैं भी एक चीज नहीं बना रहे हैं, एक चीज जो है वो है गुनगुना लो, बट आई थिंक ईच वन ऑफ अस आर गोइंग टू बी डूइंग व्हाट ईच वन ऑफ अस वांट टू डू। यहाँ पर जो हर आर्टिस्ट यहाँ पर है इस प्लेटफॉर्म में, सभी के अपने अपने यू नो दे लीड अ वेरी बिजी लाइफ, दे आर सक्सेसफुल, दे आर पॉपुलर, वो सब तो है, लेकिन हर एक आर्टिस्ट में, आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द आर्टिस्ट ओवर हियर, स्टिल देयर आर certain creative dreams which are there in every artist over here कि यार you know what, I want to do this, I want to try doing this, I want to collaborate with this person, I want to do I probably want to do a Carnatic music album, you know, or do a collaboration with somebody over here. I want, as you were speaking, maybe a beautiful poetry with alap and just a grand piano which is played by Loya Mendonça, something like that. ये हर एक के दिल में बहुत सारे वो, you know, there are dreams which are creative dreams, and this is the platform that is going to fulfill those dreams. So it's not a collective thing, each one does whatever he wants to do. I just wanted to add to that. This will give incomplete diversity. I just wanted to say that the market you're talking about, Javed Saab bhi bol rahe the, Prashant ji, ki market is there and we are working for the market, but we are creating another market which will only have art, not to what the market is like. This will be a different market, I think. यहाँ पे कुछ और ही मिलेगा शायद, and we don't have to cater to the market which is, and that's why we are doing this. We don't want to cater to that market जिसमें वो numbers and views and all that is there. This is a different market. I think it'll be nice. Okay, we have some amazing artists over here also. यहाँ जगह नहीं था, so I'd like to just take their viewpoint. Shahan, would like to say something? ऑफ कोर्स काफ़ी वक्त दूसरे स्ट्रीमिंग साइट्स पे अपने गाने डालते हैं तो वहाँ एक वो जो कंपैरिजन होती है कहीं ना कहीं हमारा मन, बट दिस इज आवर ओन प्रॉपर्टी एंटायरली, हमारे अपने यूनिवर्स में हम गाने बना रहे हैं और जो भी इस यूनिवर्स में आना चाहे ऑफ कोर्स वी विल बी सो थ्रिल्ड एंड सो हैप्पी टू वेलकम देम, क्योंकि इस तरह की यूनिवर्स और कहीं नहीं, कहीं दुनिया में कहीं और का म्यूजिकल यूनिवर्स आपको नहीं मिलने वाला. सो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, फील वेरी ऑनर्ड, वेरी प्रिविलेज्ड, एंड thank you so much that finally, of course, 5th of May has arrived and we are all here and we are enjoying this wonderful evening. And a big round of applause for everyone over here. Absolutely. Thank you very much. I'm so glad that I could be here today, and as Javed ji said in the beginning, it's really and honestly speaking, I think because I'm very humbly putting this point, but because I think most of the musicians, composers, and everyone whose major work or a big chunk of their work has been in films, we're talking a lot about having creative liberty, which I think Aruna ji will agree with me that we haven't had so much as classical musicians. We could sing a rag and decide it in the green room and think that audience will hear, aaj bihag gaane ka man nahi, aaj Bhagishri chalega. So we've had that liberty. But of course there are many other tree now. तो रीजन क्या था 5th of May को ही चूज करने का टू इंट्रोड्यूस गुनगुना लो टू अस? भाई देखिए, वी आर डीलिंग विद पीपल हु आर एक्सट्रीमली बिजी. ये सब के सब लोगों को इट इज लाइक वेइंग फ्रॉग्स कि इसको डाला तो वो कूद गया, उसको उठाओ तो ये निकल गया. तो अभी कोई आउट ऑफ 33 23 आर हेयर. हाँ, फ्रॉग्स आर हेयर. तो इसलिए हमने 5 चुना. ऐसा कोई हमारा सुपरस्टिशन नहीं है कि जो हमने डेट न्यूमरोलॉजी से नहीं निकाली है, हमने मजबूरी से निकाली है. वैसे टुडेज 05/05/2025. जी मैं कलीम सलमानी ABP न्यूज़ चैनल से यहाँ पर किया जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि सरकार भी हमारी डिमांड पूरी कर सकती है. और क्योंकि यकीन मानिए कि अगर आप लोगों के लफ्ज
आप लोगों के गाए हुए गाने और आप लोगों की म्यूजिक अगर निकाल दिया जाए बॉलीवुड से तो बॉलीवुड यतीम हो जाए एक तरह से। तो बस आपसे सवाल है जावेद सर की, आपका शेर है कि इस शहर में जीने के अंदाज निराले हैं, होठों पे लतीफ़े हैं और ज़बान में छाले हैं। आप लोगों को एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सवाल ये है कि अभी हाल ही में संजय दत्त ने कहा था कि बॉलीवुड को भी इस तरह से एक साथ आने की बहुत ज़रूरत है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बॉलीवुड सच में बटा हुआ है? क्या उन्हें भी इस तरह से एक साथ आना ज़रूरी है? दुनिया में कहीं भी अलग अलग होने से बेहतर होता है एकता। तो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई इंडस्ट्री हो या देश हो या सोसाइटी हो, एकता हमेशा के लिए अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर आएंगे सब लोग एक साथ तो अच्छी बात। जावेद साहब, आपके राइट में जावेद साहब, क्या आप मानते हैं कि मेरे पास माँ है, इस तरह के डायलॉग अब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने बंद हो गए हैं? क्योंकि गाने तो समय समय पर आते रहते हैं, जैसे सोनू निगम जी के गाने हैं, शान जी के गाने हैं, ऐसे समय समय पर आते हैं कि जो कई लंबे टाइम तक लोगों के जहन में रहते हैं। लेकिन मेरे पास माँ है, इस तरह के डायलॉग्स अब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आते, जो लोगों के जहन में लंबे समय तक रहें। क्या आप ये बात मानते हैं? हाँ, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा वैसे भी एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अब किसी पिक्चर में डालते हैं मेरे पास बाप है, अब तो शुक्रिया आपने आइडिया दिया है। हेलो 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 ललित जी, can you just... हेलो सर, मैं गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर मैं आयुष हूँ, शॉर्ट बॉलीवुड से। अच्छा, सॉरी आप पूछ रहे हैं? सर आप पहले पूछिए। टॉस कर लीजिए। कुर्सी पे खड़े हो जाइए सर, आप टर्न हो जाइए ताकि you'll be facing the camera. बहुत खुशी की बात है कि ये दिन आ गया है जब गुनगुना लो आकाश पे है, शुरुआत हो रही है। और मुझे हमेशा ही ये थॉट बड़ा इंटाइस करता था कि ऐसा टाइम कब आएगा जब एक म्यूजिक को फ्रीडम मिले। हमने थ्रू आउट अपनी लाइफ फिल्म के लिए काम किया है और फिल्मों में सिचुएशंस पे काम किया है, बट टू थिंक कि ऐसा म्यूजिक बनाना। और मैं आपको एक बात बता दूं, म्यूजिक डायरेक्टर को हमेशा पता होता है कि कौन सा गाना अच्छा है। हालांकि वो प्रोड्यूसर की मान लेता है और कोई गाना उसको अच्छा लगता है तो चला जाता है, मगर ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं होता, सब पता होता है। और अब जबकि ये प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पे हम अपनी दिल की कर सकते हैं, जो हमको पसंद है वो बना सकते हैं, ये एक फ्रीडम, जैसे प्रसून जी ने कहा कि पिंजरे में से एक बर्ड बाहर निकली तो उसको कैसा लगेगा। तो जावेद साहब ने इतना खूबसूरत शेर सुना है, मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ गाने जो इसमें बने हैं जो मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि शायद फिल्म में ना जाते, मगर यहाँ इतनी खूबसूरती से राइटर्स ने लिखा है और इतना मज़ा लेके हमने बनाया है। कुछ तो गाने हमारे जावेद साहब के साथ इतने पुराने हैं जो बना के हम रख देते थे, वो गाने हैं इसमें। और मैं सोचता हूँ कि वो गाने अब इसमें आएंगे तो वो उसका कैसा कलर आएगा। देखिए, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि म्यूजिक 19 हो रहा है या 20 हो रहा है या अच्छा हो रहा है। इसमें सिर्फ मुझे कभी नहीं लगता कि इसमें म्यूजिक डायरेक्टर की फॉल्ट होती है, इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की फॉल्ट होती है। वो कहीं पुश इस तरफ कर देते हैं कि गाना उसी डायरेक्शन में बनाना पड़ता है, नहीं तो ओके नहीं हो पाता। मगर यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि जो आपको पसंद है वो आप कीजिए और अच्छा करके बताइए, ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद आए। और मुझे लगता है जब इंसान अपनी पसंद का काम करता है और मजा लेके काम करता है, वो हमेशा लोगों के दिल में असर करता है। ये म्यूजिक वैसा आएगा मुझे लगता है। लग रहा है ये सुरो की ड्रीम 11 बनी हुई है और कैप्टन सर जावेद सर है और आपके साथ बेंच में भी एक से एक प्लेयर्स पड़े हुए हैं। सर मेरा सवाल एक्चुअली ये था सर, बेसिकली हम लोग 85 बॉर्न है, 90s के किड्स हैं और उस समय पॉप का एक बहुत अच्छा कल्चर था। हम सब ने देखा सोनू सर के एल्बम्स आते थे, शंकर सर के एल्बम्स आते थे और बहुत अच्छे एक से एक हरिहरन सर जी के एल्बम्स आते थे और हमें बड़ा मज़ा आता था। हम गा नहीं पाते थे, हम सुन पाते थे और हम कनेक्ट हो जाते थे। सर ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने लॉन्च किया है, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हमको वो वाला दौर वापस से मिलेगा? सर वो 90s का पॉप का दौर, सर शान सर खुद बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक से एक एल्बम आए, एक से एक गाने आए, क्या वो रिवाइव हो सकता है सर?
देखिए कहीं मार्केट फोर्सेस ने एक तरह का असर तो किया है और कुछ एक जेनरिक हो गए हैं गाने, जिस तरह की पहले गानों में डेप्थ होती है। प्रताप प्रसून साहब ने कहा था, उसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता, जो बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे याद है कई बरस पहले आप, कि हमारे जो गाने होते थे वो पीपल्स फिलॉसफी होती थी उसमें। पब्लिक जो है वो सोशियोलॉजिस्ट नहीं पढ़ती, फिलोसफर नहीं पढ़ती, लेकिन किसी क्या के हो निसार किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये इस तरह के गीत होते थे जिनमें ह्यूमैनिटी जागती थी, मोहब्बत जागती थी, दोस्ती जागती थी, या दिल के जज्बात जागते थे। जो दुखी गाने होते हैं, हम भी तो दुखी हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं, हर आदमी में कुछ दुख है, ये सब कम हो गया है। ख़ासतौर से सैड सॉन्ग तो बिल्कुल ही अब ख़त्म ही हो गए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऐसा ख्याल है कि ये नहीं चलते हैं या नहीं चलेंगे। तो ये ज़रूर है कि ये फ्रीडम जो मिली है कंपोज़र्स को, सिंगर्स को, राइटर्स को, तो आपको उनके मन की बात पहुंचेगी उन तक जो उनके दिल से निकली हुई, और जब बात दिल से निकलती है तो कहीं ना कहीं किसी दिल को छूती भी है। तो यकीनन जो आपको शिकायत है वो दुरुस्त है अपनी जगह। कमाल की बात यह है कि जो जितने ये प्रोग्राम होते हैं टीवी पे, बच्चे जो 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के, 21, वो अपनी पैदाइश से 60 साल पहले के गाने गाते हैं, 50 साल पहले के गाने गाते हैं, लेकिन अभी का गाना नहीं गाते। तो ये क्या बात है, क्यों है? मतलब हम जब पीछे देखते हैं हमें ध्यान नहीं रहता कि ये गाना जो है, ये रात भीगी भीगी, ये 60 साल से ज़्यादा पुराना गाना है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ये 70 साल पुराना गाना है, और आज भी लोग गाते हैं, बच्चे गाते हैं। तो ये जो है, ये गाने दिल से निकले थे। अच्छा वो है क्या कहानी, उसमें डेप्थ हो, ऐसी सिचुएशन हो जाए, इमोशनल सिचुएशन, हर गाना आइटम गाना अगर बन जाएगा, सॉन्ग होगा, तो उसमें कहाँ से वो डेप्थ आएगी, कहाँ वो ठहराव आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो हमारे कंपोजर्स हैं, जो हमारे सिंगर्स हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, इसको महसूस कर रहे थे, और इस कमी को कि वो नहीं कर पा रहे जो उनका दिल चाहता है। वो ठीक है, वो उनकी मर्जी है भाई, आप कमीशन वर्क कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आपने डॉटेड लाइन पे साइन किया, आप ज़रूर कीजिए, वो भी जीना का सहारा है। लेकिन ये कि जो आपका अपना पर्सनल एक्सप्रेशन है, जो आप रियली करना चाहते हैं बगैर किसी कंपल्शन के, वो यहाँ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। जस्ट ऐड कर रहा हूँ जो जावेद साहब कह रहे हैं, और कौशिकी जी आपने कहा, और यहाँ पे अरुणा जी हैं, शंकर महादेवन तो करते ही रहते थे वो, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस को उन्होंने कहा कि हमें तो फ्रीडम मिलती है। मैं इसका एक थोड़ा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फिल्म म्यूजिशियंस आर फ्रस्ट्रेटेड, दैट इज, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप बंदिशों को गाती हैं, ये बंदिशों में गाते हैं, तो इसलिए थोड़ा फर्क है। और शंकर महादेवन कोशिश करते रहे, स्टेज में गए, उन्होंने उन बंदिशों को तोड़ने की कोशिश की है, और आई थिंक दिस इज अ कंसीडर्ड एफर्ट टू गिव प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ देम हु प्रोबेबली वुड नीड दैट। देखिए ना, मैं तो कौशिकी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हालांकि मेरी बेटी की उम्र के हैं, बट आई एडमायर। मेरी बहुत तमन्ना थी, मैंने कितनी बार शंकर साहब से कहा कि आई वुड लाइक टू राइट अ सॉन्ग फॉर हर, तो वहाँ तो मौका मिल नहीं रहा था, लेकिन अब मैं तो लिख दूंगा, पता नहीं गाएंगी नहीं गाएंगी वो इनके हाथ। जी We have Shweta Mohan who's flown in all the way from Chennai. So that's the beauty, you know. It's, please remember, this is not going to be only Hindi. Not just restricted to any language. It's going to be multiple languages, regional songs, folk songs, pop, jazz, fusion, blues, the works. And maybe only music, maybe a sitar recital. Absolutely, yeah. Anything. Instrumental, yeah. Only rhythms. So, sky's the limit. Thank you. हमारे पुराने गाने जो होते थे उनका जवाब अलग होता था, और सर ये अभी जो रीमिक्स बना रहे हैं उन गानों की रेड मार रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? अपने प्रश्न का उत्तर आपने खुद दे दिया है।
हाँ मतलब आपने तो मेरे मुँह से सारे वर्ड ही छीन लिए, अब मैं क्या बोलूँ। ठीक कह रहे हैं आप। तो सर ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको आप रीमिक्स करें। कल को आप बोलेंगे कि अजंता में साइकेडेलिक लाइट लगा दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, केव्स में अगर ताजमहल में डिस्को खोल दिया जाए तो क्या बात है। तो वो ये बात ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है, इसको हमें संभाल के रखना चाहिए। देखिए हॉलीवुड में क्या हुआ था कि एक वक्त आया था जब पुरानी क्लासिक जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स थी उसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कलर किया, हंगामा हो गया। वहाँ के डायरेक्टर कहा आप ये नहीं कर सकते, जो ब्लैक एंड वाइट की पिक्चर्स हैं उन्हें आप ब्लैक एंड वाइट पर रहने दीजिए, बिकॉज दे वो बॉदर्ड अबाउट दे वैल्यू दे हेरिटेज। तो वो हमें भी करना चाहिए। आप नए गाने बनाइए, ऐसा क्या मतलब आप शुरू में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि नया गाना बना सके, ये तो बड़ी ख़राब बात है। आप नया गाना बनाइए और आप अच्छा ही बनाएंगे, क्यों बुरा बनाएंगे भैया। तो ये पुराने गाने लेके उनमें रैप डाल दें, आप ये कर दें वो कर दें। आई एम नॉट अगेंस्ट रैप, रैप बहुत अच्छे होते हैं, रैप करिए अलग से, मगर वो पुराने गाने में सब डालने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका कल्चरल हेरिटेज है। लता जी का गाना, रफ़ी साहब का गाना, किशोर दा का गाना, ये मुकेश जी के गाने, अब ये उनको आप संभाल के रखिए, ये हमारा धरोहर है, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं करना चाहिए। Can I request all the Gungunali family to come here? We'll have a photo up now. दो एक लोग और हैं, मैं चाहूँगा वो उनका बोलना ज़रूरी है। अभी बैठ जाइए। आनंद जी, आनंद जी। India and not just the metros. That is suggestion 1. And suggestion 2, the technical workshops, if they can be provided for any upcoming musician. When I say technical, I mean, you know, where they are invited to studios, all of your studios across Mumbai, across the country, they get to see firsthand how to operate the various devices. I think that will be a good addition. Thank you so much for your time, guys. That's a good idea. Good. Thank you for this. We have Atul Churamani with us. जहाँ मोहब्बत नहीं है वहाँ मोहब्बत दिखाते हैं, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ छुपाते हैं। Can I invite the Gungunali family for a photo op? क्या बात है खान साहब? शंकर किधर है? नीचे बैठे हैं। ये मोबाइल नीचे करना भाई। राकेश भाई मोबाइल नीचे करो। अरे यार आगे बैठे हो ना।
समय सर क्या कहना चाहेंगे गुनगुना लो के एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोगों को लाना बहुत चैलेंजिंग है और कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से? डेफिनेटली जो म्यूजिक फ्रेटर्निटी है इनके लिए इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता और बहुत सालों का ये सपना है और बड़ी कोशिशों के बाद एक प्लेटफॉर्म ये बना गुनगुना लो और जितने भी म्यूजिक से जुड़े लोग हैं वो चाहे यहाँ से हों यहाँ से बाहर से हों फोक गाने वाले हों क्लासिकल गाने वाले हों हर आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता और क्रिएटर्स को जो फ्रीडम यहाँ दिया जा रहा है आपको वो काम करना है जो आप करना चाहते हैं। ये शिकायत बरसों से लोगों की रही कि यार हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। सिचुएशन होती है, फिल्म होती है, डायरेक्टर होता है और उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं तो उसके बीच में हमको काम करना रहता था। ये जगह है जहां आपको प्रूफ करना है कि आप में क्या टैलेंट है और उसका बेनिफिट आपको मिलना है, उससे पॉपुलैरिटी आपको मिलनी है। तो नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए ये आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन है कि 5 मई 2025 को एक ऐसी शुरुआत हुई थी जो लोग सदियों तक इसको याद करें। थैंक यू वेरी मच। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना अलग सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग ने? हम वहाँ कह ही रहे थे कि ऐसा दुनिया में कुछ आई थिंक देयर इज नो अनदर प्लेटफॉर्म, इस तरह का कोई उदाहरण ही नहीं, कोई एग्जांपल ही नहीं। क्योंकि जैसे हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा, म्यूजिक कंपनी से आता है, आर्टिस्ट गाता है, फिल्मों में जाता है। यहाँ सिर्फ आर्टिस्ट मिलके एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो आर्टिस्ट रिलीज करेंगे म्यूजिक और आप लोगों तक उसी ये गुनगुना लो के प्लेटफॉर्म से ही जाएगा। एंड इसमें हम सब मिलके काम करेंगे, जितने आप देखेंगे इसमें यहाँ पे आर्टिस्ट सब मिलके हम काम करेंगे। तो कभी कोई 2 लोग, कभी कोई 3 लोग। तो अगर मैंने गाना रिलीज किया तो शंकर जी उसके बारे में बोलेंगे, शान ने किया तो मैं बोलूँगा। तो इस तरह से ऐसा कोई प्ले इट्स नेवर हैपेंड बिफोर। इट इज समथिंग व्हिच इज मतलब इट्स अनरियल, इट्स लाइक इट्स टू गुड टू बी ट्रू। दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक। आई थिंक वी आर ऑल, दैट्स व्हाई कमिंग टुगेदर। ये इंडिया में नहीं, दुनिया में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। आई थिंक दिस इज हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू बी। एंड इसमें सबका ये है कि जो हम बोलते हैं, आज आप लोग सब वहाँ नहीं थे उस डिस्कशन में, तो बोलते ना कि उस तरह का म्यूजिक कहाँ गया, आजकल वैसा म्यूजिक क्यों नहीं होता है। तो सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उस तरह का म्यूजिक, जिस तरह का म्यूजिक मन करे बनाने के लिए। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द म्यूजिक रीचिंग यू। So I am actually honored to be a part of this wonderful platform, Gungunalo, as one of the artist investors and one of the stakeholders in the company, where we all as a fraternity, all the legends of the music industry, it's an honor to be collaborating with them and to get associated with them and create some music collaboratively and with complete creative freedom. एक क्रॉस कोलैबोरेशंस जो होंगे आर्टिस्ट्स के एक साथ में और नए आर्टिस्टों के साथ, और साथ में कॉन्सर्ट्स भी करेंगे, इवेंट्स भी करेंगे। तो इट्स अ कम्युनिटी ऑफ म्यूजिशियंस कमिंग टुगेदर टू प्रमोट व्हाट वी कॉल एज रियल आर्ट, एंड दिस इज व्हाट has inspired me to come together along with all of them on Gungunalo. मैम, गुनगुनालो के बारे में आज जितनी बातें कही गई हैं और क्लासिक म्यूजिक के बारे में बात की आपने, बताई, क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक? किस भाषा में बात करूं, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। यू प्रेफर हिंदी? मैं अरुणा साई राम आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि गुनगुनालो के शेयर होल्डर्स में मैं भी शामिल हूँ और ये मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम बात है क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत तो गाती हूँ, दुनिया भर में प्रोग्राम्स देती हूँ और सब कुछ बहुत ही ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया ही है।
लेकिन मन में एक ऑलवेज एक विचार था कि मैं क्लासिकल के अलावा और भी फॉर्म्स में मैं शामिल हूँ और भी नॉन क्लासिकल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करूं, उनके साथ कुछ गाने बनाऊं जो हमारे क्लासिकल के एकदम रत्न हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, उनको कैसे दूसरे कोलैब इफेक्ट में डाला जाए कि आम लोग भी उसको सुन सके, फोक म्यूजिक को कैसे सुन सके। और ये सब के लिए पॉसिबिलिटीज़ आज मुझे खुलने लगी है। और जो हम एक क्लासिकल प्रोग्राम में 3 घंटे में जो इफेक्ट हम ला सकते हैं, वो इस कोलैबोरेशन से इतने महान कलाकारों के साथ 3 मिनट में, 3 घंटे का जो संगीत का रस है 3 मिनट में आ भी सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये हमारी आर्टिस्ट की बिरादरी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू। लो साथी प्लीज आइए। हाँ बताइए। सर सामने जी सर, आज अपना अनाउंसमेंट हो गई फिल्म नालों की, तो इस बारे में बहुत सारी बातें तो हमने वहाँ पे कही, कुछ ऐसी चीज जो हम मिस कर गए हो तो प्रेस को बताना चाहते हैं। नहीं, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको लगता है कि आर्टिस्ट होते हैं, उनके पास तो माइक है, मंच है, उनको किस बात की ज़रूरत है, उनको तो एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है। पर कई बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनको लगता है कि वो अपने दिल की बात नहीं कह रहे, किसी और की बात कह रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपने मन की बात कह सकते हैं। अगर उनको लगता था कि उड़ते समय उनके पंख किसी इमारत की दीवार से टकरा रहे थे, तो वो अब नहीं टकराएंगे। उनके पास एक खुला आसमान है उड़ने के लिए। सो आई फील दैट द रिस्ट्रिक्शन और व्हाट दे यूज्ड टू फील, वो अब उनको नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है। और अभी क्लासिकल म्यूजिक की बात हो रही थी, उनका क्लासिकल म्यूजिक में तो ऐसा नहीं है, उनको तो पूरी फ्रीडम है जो राग गाना चाहे। मैंने कहा कि हाँ, वो बंदिशों को गाते हैं और यहाँ फिल्म वाले बंदिशों में गाते हैं, तो शायद वो बंदिशें कम होंगी और खुला आसमान मिलेगा। और ये हमारे सुनने वालों का भी हक है, लिसनर्स का, ऑडियंस का भी ये हक है कि उनको आर्टिस्ट की सच्ची आवाज़ है, उसके दिल से निकली हुई आवाज़ है, वो मिले सुनने को, ना कि वो आवाज़ जो थोड़ा इधर से पुश करी गई है, थोड़ा उधर से पुश करी गई है, या किसी कैरेक्टर के लिए लिखी गई है। हम हालांकि कोशिश करते हैं कि, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, जब मैंने तारे ज़मीं पर माँ लिखा था तो मैंने अपनी मदर के लिए लिखा था। मैं सही बताऊँ तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए लिख रहा हूँ, या लुक्का छिपी जब मैं लिख रहा था तो मुझे लग रहा था मैं अपनी माँ के लिए लिख रहा हूँ। तो कई बार हमको ऐसे मौके मिलते हैं कि हम अपने मन की बात करें, पर कई बार नहीं भी मिल पाते। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक कवि की हैसियत से, लेखक की हैसियत से, या कोई गीतकार गायक की हैसियत से अपनी मन की बात कह सकें। और ये सुनने वालों का भी हक बनता है कि उनको हमारी दिल की आवाज़ सुनने को मिले। सर क्या कहना चाहेंगे जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या कहना चाहेंगे सर इस प्लेटफॉर्म के बारे में? देखिए, जैसे अभी मैं किसी से यही कह रहा था कि हम लोग ने करियर बहुत साल पहले शुरू किया और करीब करीब 250 पौने 300 फिल्में करने के बाद एक चीज़ से हम लोग हमेशा डिस्टर्ब रहते थे कि मोर ऑफन देन नॉट हम जो चाहते थे उस तरह की धुनें, उस तरह के गाने हम नहीं दे पाते थे। ठीक है, हमारे गाने बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत से गाने जो हम पसंद करते हैं वो रिकॉर्ड, लेकिन ये एक वैसा प्लेटफॉर्म है फॉर द कंपोजर्स, राइटर्स, सिंगर्स, बाय द कंपोजर्स, राइटर्स, सिंगर्स। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। गुनगुना लो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा प्लेटफॉर्म है कंपोजर्स, ऑथर, सिंगर्स, सारे लोगों के लिए। जैसा आनंद जी ने कहा, हम लोग करीब 43 इयर्स से काम कर रहे हैं। कई हम लोग ने गाने ऐसे दिए जो हमारे पसंद के थे और हैं,
मगर कई गाने ऐसे भी दिए जो हमें दूसरे के पसंद हाँ हमें इतना नहीं पसंद था, लेकिन जिसके लिए काम कर रहे हैं उनको पसंद है। और यहाँ पर इंडस्ट्री में एक और चीज़ है कि यू हैव टू सेटिस्फाई अ लॉट ऑफ पीपल। प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होते हैं, हीरो हीरोइन आते हैं सिटिंग्स पर, रिकॉर्ड लेबल्स, म्यूजिक कंपनीज आती है, तो हम लोग को वो देना पड़ता है जो सारे लोगों को पसंद है। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि हम लोग को 100% पसंद नहीं है, लेकिन देना पड़ रहा है। गुनगुना लो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ हम वो देंगे जो हमें पसंद है, और आई एम डेड श्योर कि जो हम लोग अपने दिल से देंगे वो लोग पसंद करेंगे ही। तो इट्स अ चांस कि हम टू ब्रिंग बैक मेलोडी, पोइट्री एंड अच्छे अच्छे गाने। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, गाने काफ़ी तैयार भी किए हैं, एंड होपफुली आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आएगा। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। Well, today is a very very important day. आज जो हम सब आर्टिस्टों का एक ड्रीम था, ड्रीम है, और हर आर्टिस्ट के दिल में, भले वो कितना ही पॉपुलर हो, कितना ही बिजी हो, कितना ही सक्सेसफुल हो, फेमस हो, फिर भी दिल में एक क्रिएटिव ड्रीम होता है कि यार मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, यार मुझे ऐसे कोलैबोरेशन करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर जो क्रिएटिव ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए हमने ये गुनगुना लो प्लेटफॉर्म बनाया। आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज बहुत इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। हम सब भी कोशिश करते हैं हमारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज करने के लिए। बहुत लोग आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बट ये आर्टिस्ट कौन से प्लेटफॉर्म्स पे म्यूजिक रिलीज करते हैं? ये यूट्यूब पे रिलीज करते हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, ये सारे जो जियो हो गया, जियो सावन हो गया। But these songs belong to whom? No, it belongs to the artist, but यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जब हम गुनगुनालो पे रिलीज करेंगे, ये प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो ओन्ड बाय द आर्टिस्ट, तो हम खुद के कंपनी से ये गाने डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, विच इज आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग थिंग। एंड जो आर्टिस्ट इन्वेस्टर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के, आई थिंक जो रीच उन सारे आर्टिस्ट के फैंस और उनके फॉलोअर्स से, तो कोई भी गाना रिलीज करता है क्रॉस प्रमोट होगा, एंड आई थिंक उससे even a classical song will reach to probably an artist जो pop music करता है, उनके fans तक। So I think ये जो USP है इस ऐप की एंड इस प्लेटफॉर्म की, इस कंपनी की, I think that's why it's such a big thing, it's a historic moment and we are so honored to be a part of this elite group. देखिए, जाने से पहले मैं ये जो आर्टिस्ट जो ये कंपनी को ओन करते हैं, द शेयर होल्डर्स ऑफ दिस ऑफ द कंपनी, उनका मैं नाम पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जावेद अख्तर साहब, शंकर महादेवन, समीर अंजान, प्रसून जोशी, हरिहरन, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, कौशिकी चक्रवर्ती, अरुणा सायराम, शान, अमित त्रिवेदी, शेखर रवजियानी, विशाल ददलानी, पैपॉन, सुलेमान मर्चेंट, सलीम मर्चेंट, मिलिंद श्रीवास्तव, इरशाद कामिल, विजय प्रकाश, आनंद श्रीवास्तव, श्रीनिवासन दौरेस्वामी, ललित पंडित, श्वेता मोहन, अनुषा मणि, अमिताभ भट्टाचार्य, एहसान नूरानी, लॉय मेंडोंसा, अनुपम रॉय, हर्षदीप कौर, महालक्ष्मी अय्यर, राजू सिंह, विक्रम घोष, आकृति कक्कर, मनन सिंह, रेचल सिंह, सिद्धार्थ महादेवन, सोमिल शिकारपुरे, अक्षय हरिहरन और जोशवा सिंह। ये प्लेटफॉर्म इन सब का है, और this is just the beginning. ये तो शुरुआत है। Hundreds and thousands of artists जो ज्वाइन करेंगे इस फैमिली को, एंड ये जो कंटेंट होगा इट विल बी एक्सक्लूसिवली ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू रिलीज द म्यूजिक जो हम we've been waiting to put out for all our music lovers, and बहुत मजा। गुनगुना लो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड record label, streaming platform, social media platform solely owned by composers and artists. बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि आज अगर हम देखें तो there is a big void in the system. हमारी industry is owned, our music is owned by somebody else. This is the first time that a cumulative force of creators and composers, artists, writers are coming together, साथ में आके
अपना खुद का कंटेंट जो बन रहा है वो ओन करेगी। तो दैट्स अ बिग गेम चेंजर फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द आर्टिस्ट देमसेल्व्स, और मुझे लगता है ये बहुत दूर तक जाएगा। थैंक यू। गुनगुना लो हमारे लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने फ्रीडम से हमारे थॉट्स, देयर आर सो मेनी आइडियाज व्हिच हम लोग अपने जैसे किसी के लिए गाने बना रहे हैं तो हमने बना के रखे हुए हैं। इट्स नॉट ओनली दैट बट इट आर दोज आइडियाज जो हमारे पास पड़े हुए हैं, प्लस हमें ऐसी चीज़ें करने का मन होता है जो हम उस पर डिसीजन ले सकें। और इसमें हमें भी एक और चीज़ सीखनी है, हमें भी फ्रीडम की आदत नहीं है, तो फ्रीडम होते हुए कहाँ फुल स्टॉप डालना वो हमें भी एक एक्सपेरिमेंट होगा, हमारे लिए लर्निंग होगी। बट एक ऐसी जगह जहाँ हम सब बैठ के कोलैबोरेट कर सकें एक दूसरे के साथ में, एंड विद व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट, सब लोग के साथ रियली एक्साइटेड अबाउट कि अभी क्या क्या हम लोग नया चीज़ कर सकते हैं और सब पूरा। So I'm just waiting to start. Just waiting to go. There's so much music to be made, and there's so much talent, and there's so many ideas, and so many minds that have done so much. It's only a matter of time that things that you have never heard before are going to come through. That's what I'm trying. Thank you. Come next. अच्छा, द नेम्स। सर क्या कहना चाहेंगे, गुनगुना लो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, राइटर्स के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। और सभी लोग जो है फोन कर रहे हैं इस ऐप को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आगे क्या होगा, कैसे होगा, बिजनेस वाइज कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इट स्टार्टेड विद अ वेरी क्लीन इंटेंशन, विद अ वेरी प्योर इंटेंशन। और जो भी चीज़ मेरे हिसाब से एक साफ दिल से, साफ मन से बनता है, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल जब नंबर्स बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री हो चुकी हैं, तो हम किसी चीज़ की हिट या ना हिट पर सोचते हैं कि इसको कितने व्यूज़, कितने स्ट्रीम्स, उस पर सब निर्भर है, सबकी करियर्स निर्भर है कि आपकी पॉपुलैरिटी इन नंबर्स पर निर्भर है। तो यहाँ जब ये अपना ऐप है, मैं जानता हूँ कि यहाँ वही लोग इस ऐप को सब्सक्राइब करेंगे, वही लोग आएंगे जो कुछ अलग म्यूज़िक, कुछ खास म्यूज़िक, कुछ स्पेशल म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। वरना ये सारे जो आर्टिस्ट हैं, कहीं ना कहीं हमारे गाने आप तक पहुँच रहे हैं, नॉन फिल्म गाने भी आ रहे हैं, सबके अपने अपने चैनल्स हैं। लेकिन यहाँ हम सब कोशिश करेंगे कि हमारी जो बेस्ट चीज़ है, जो सबसे मतलब म्यूज़िकल चीज़, सुपरलेटिव चीज़ हो, वो हम गुनगुनालों में रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन तो होगी। हम नहीं चाहेंगे कि 4 लोगों के सामने अरे यार ये शान ने कैसा गाना डाल दिया है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वही मैं रखूँ। सो म्यूज़िक का जो स्तर होगा गुनगुनालों में, वो अमूमन बहुत ही एक हाई लेवल का होगा। तो ऐसे ही लिसनर्स, ऐसे ही दर्शक श्रोता हमें मिलेंगे जो म्यूज़िक से वाकई प्यार करते हैं और म्यूज़िक को समझते हैं। तो ये एक बहुत ख़ास कम्युनिटी बनेगी। शान, जैसे आपने कहा कि बहुत ही अलग तरह के गाने और बहुत ही स्पेशल तरह के गाने लोगों को मिलेंगे, तो क्या अनएक्सपेक्टेड जो कोलैबोरेशंस है वो भी देखने मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गाने सब्जेक्टिव होते हैं। जो गाना मुझे पसंद है शायद आपको पसंद ना हो, तो वो कहना कि क्या अच्छा है क्या बुरा वो मुश्किल है। लेकिन सब अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और साथ साथ देयर विल बी बिहाइंड द सीन, देयर विल बी कोलैब्स, वो सब सबने बताया आपको। तो वो भी एक हाईलाइट होगा जो कहीं और आपको नहीं मिले। सर, जैसे धोखाधड़ है, वो तो ये ऐप सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग को सुन पाएंगे। एक वन स्टॉप शॉप हो गया जहाँ इतने सारे लेजेंड्स हैं जिनको सुना जा सकता है। बट सर, जो सुन रहा है वो क्या आप लोग से इंटरेक्ट कर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ नंबर्स आर लेस। जहाँ आप समझ लीजिए आप एक शो कर रहे हैं जहाँ 20,000 लोग हैं, 20,000 में से एक इंसान क्या ही आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। बट दिस ऐप इज सच दैट इट्स अ सब्सक्रिप्शन ऐप। जब 300-400 लोग एक रूम में हो, उसमें तो ज़रूर एक की आवाज़ या 2 की आवाज़ या 20-25 शायद सबकी आवाज़ हम सुन पाए। तो देखते हैं कैसे होगा। बट डेफिनेटली इट्स वेरी इंटरैक्टिव एंड इट इज़ वेरी इमर्सिव। ये नहीं कि बस एक तरफ से गाना गा रहे हैं। आप खुद सजेस्ट कर सकते हैं, आप किसी आर्टिस्ट को सजेस्ट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आप फला फला आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करें, और उस चीज़ को हम अमल करेंगे। सर, सबसे पहले
गुनगुना लो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा राइटर्स, सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए, उसके बारे में? देखिए, जो लोग सुनते हैं इसके बारे में कि क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता, बड़ा इमोडेस्ट लगेगा मेरे मुंह से। लेकिन ये कि ये अब दुनिया में ये पहली तरह की चीज़ है, ऐसा कहीं हुआ नहीं कि जहाँ म्यूजिशियन, सिंगर, लिरिसिस्ट मिलके एक कंपनी फॉर्म करें, उसमें शेयर होल्डर और अपने अपना संगीत टोटल फ्रीडम के साथ। ऐसा नहीं है कि हम चेक करेंगे, कोई हमारा तो उसमें कमेटी है जो देखेगी कि क्या गाना है क्या नहीं है। आपके आर्टिस्टिक फ्रीडम टोटल है, इसलिए कि जो लोग हैं वो बड़े ट्रस्टवर्दी नाम है, बड़े इज्जत कमाए हुए लोग हैं। वो अपने कम से कम 4 कॉम्पोजिशन, दादा जितनी चाहे डाले, वो हर साल करते रहेंगे। और इतने मेंबर्स हैं हमारे, जो सब 4-4 करेंगे तो 100-150 से ऊपर गाने होंगे हर साल, और पूरे टोटल क्रिएटिव फ्रीडम के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही बेमिसाल प्लेटफॉर्म बनने वाला है। सर, इतने सारे आर्टिस्ट को, इतने सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स और सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना कितना चैलेंज? नहीं, प्लेटफॉर्म में है, लेकिन अपनी जगह हर एक आज़ाद है। प्लेटफॉर्म एक है, लेकिन उनका काम उनकी मर्जी से हो रहा है। ये अपना काम कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। उसमें एक दूसरे के काम में दखल नहीं। सर, अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस भी देखने मिलेंगे नए आर्टिस्ट के बहुत बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। और ये जो है नया टैलेंट भी हम लाएंगे इसमें। अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर को एक नई आवाज़ अच्छी लगी या एक नया लिरिसिस्ट अच्छा लगा, तो वो उसे उसमें लेके गाना बना के देगा, तो उसको नए टैलेंट को इतना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। एक लिरिसिस्ट को कोई सिंगर मिला या एक कंपोजर मिला जिसमें उसकी गीत जो है, उसकी गज़ल जो है बहुत अच्छी कंपोज की, तो उसे वो अपने नाम से डालेगा, क्रेडिट उसका दे के। तो जो मेंबर हैं वो नए लोगों को लाके इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत नया टैलेंट इसमें आता ही रहेगा। सर, जैसे सारे जो आर्टिस्ट हैं वो ओन कर रहे हैं इस ऐप को, क्या कोई नया आर्टिस्ट आता है तो क्या उनको भी स्टेक होल्डर? नहीं, वो तो उनकी मर्जी है। अगर वो शेयर खरीदते तो स्टेक होल्डर हो जाएंगे, वो तो शेयर है कंपनी का। लेकिन अगर वो नहीं भी खरीदते या नहीं खरीद सकते, तो कम से कम उनके आर्ट को इतना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। इसलिए कि यहाँ तो जो भी म्यूजिक लवर है इस चैनल पे, इस पे तो आएंगे ही। जितने जो नाम इसमें जुड़े हुए हैं, देखिए जिन तस्वीरें हैं सामने इनकी यहाँ है, तो लोग आएंगे क्यूरियोसिटी से, भाई क्या नया आया है, क्या बना रहे हैं लोग। तो उन बच्चों को भी, जो नए लोग हैं, उनको एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है ना? थैंक यू। हाँ जी। क्या इंग्लिश? तो 4 साल से काम कर रहे हैं हम लोग आर्टिस्ट लेके आने, और these artists are wonderful who want to change the world of music, who want to bring younger artists into the fold, create music that will just blow the mind away for younger generations. The tech platform that I am will be responsible for will take all of this and make it available for the entire world in different countries, in different geographies, ensuring that children, say like body love, everybody will enjoy the music that we can put out. Other than music, we'll have very intriguing new content. There will be spoken word, podcasts, and so many other things. Shirley, you want to say? Repeat the question again. सबसे पहले तो ये ऐप कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और इतने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना कितना चाहिए? आई थिंक ये जो ऐप है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर इसीलिए होगा, लाइक व्हेन यू कंपेयर द रेवेन्यू ऑफ एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट vis-a-vis एन इंडियन आर्टिस्ट, जो गेम चेंजर है इज बिकॉज वो अपने गाने का ओनरशिप नहीं होती उनके पास। वो गाना बेच देते हमारे लेबल को, कंपनी को, प्रोड्यूस लेबल। एग्जाम्पल टेक बीटल्स का सॉन्ग अभी भी उनका ही है, तो आप कितने भी वर्जन्स करो, कितने भी रीमिक्स करो, वो पैसे बीटल्स को ही जाएगा कॉपीराइट का। सो बिकॉज नाउ यू आर ओनिंग योर ओन कंपनी, तो आप इन गाने का आप मालिक हो जाते हो। सो एवरी रेवेन्यू द सॉन्ग अर्न्स नाउ इज यू गोइंग टू बी a part of that revenue. So biggest game changer is the way the artist is going to earn out of this whole situation. And I think challenging बिल्कुल नहीं था। I think idea आया, सब शंकर जी है वो बात किए, literally it happened. I think हर चीज़ का एक समय होता है,
और समय सही था। एंड एक चीज़ है कि आइडिया होना एक चीज़ है, पर उसको बना के लेना एक दूसरी चीज़ है। नाउ श्रीधर जी जो है, उन्होंने पहले काम जो आई थिंक 23 या 24 उन्होंने जो किया था, अभी हम लोग फ़ोन पे जो ईमेल देखते हैं, फ़ोन में जो टेक पढ़ते हैं, वो इनका डिस्कवरी था। याहू ने इनकी कंपनी खरीदी थी 1999 में, इनकी कंपनी खरीद के देन याहू गॉट emails on your phones. So next big job he's going to do is getting Gungunalo to be bigger than Yahoo. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Thank you. सर गुनगुनालो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, राइटर्स के लिए? एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, सर कितना गेम चेंजर? ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो जैसे आप बोल रहे थे कि सब ये ओनर्स भी हम लोग हैं, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, लिरिसिस्ट, और क्या है कि पॉसिबिलिटीज इतने हैं इसमें कि कोलैबोरेशंस अगर करते रहे 10 साल तक कोलैबोरेशन चलेंगे। सिर्फ जो मेंबर्स अभी है और भी मेंबर्स जब ज्वाइन होंगे तो फिर मतलब कि द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, ये चलते रहेगा, म्यूजिक बनते रहेगी और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जिधर मतलब कि ऐसे नहीं कि फिल्म की प्रेशर हो कि सीन की प्रेशर हो या स्टार्स की प्रेशर हो। ये जो म्यूजिक फॉर म्यूजिक सेक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी इंडस्ट्री। ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड जो कोलैबोरेशन है वो भी देखने मिलेंगे। जी हाँ, जावेद सर वर्किंग विद न्यू यंग टैलेंट। जी हाँ, क्योंकि क्या है कि इस जो कोलैबोरेशन में इतनी स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक है, अगर शास्त्रीय संगीत हो या फोक म्यूजिक हो या जैज या रॉक या जो भी हो, क्या है कि कॉम्बिनेशंस में इतनी पॉसिबिलिटीज है कि कुछ नए ही निकलेंगे। क्या पता मतलब कि शायद इनमें से गाने फिल्म्स में भी जाएंगे, मतलब कि इस फिल्म्स के लिए नहीं, मगर शायद फिल्म वाले बोलेंगे हमें ये गाना हमारी फिल्म के लिए चाहिए। कैन वी टेक इट? यू नेवर नो, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी। थैंक यू सर।